Hello everyone. Today here we are again to learn new topic and that is possessives that belongs to your grammar portion. Okay, and the name of the topic is possessives. But before starting our today's topic, a very happy morning to all and Jai Vigyan. So let's begin with today's topic that is possessives. Topic का नाम क्या है? Possessives. I know you all would not be understanding this topic with the title. Title से पता नहीं चलेगा. So now let's begin with today's topic and that is possessives. Possessive nouns. Now keep aside the word possessive but you all know what noun is. Noun का मतलब क्या होता है? Naming word. A naming word. And here we are going to learn possessive nouns. Okay, possessive nouns. Now, what do you mean by possess? Possess. That means to own or have. To own or have. मतलब कुछ हमारा. That belongs to us. To own or have. Possessive nouns. Possess. That I've already said means own or have. For example, I possess a house. मतलब मेरे पास एक घर है. That is mine. That belongs to mine. ये घर जो है वो मेरा है. I have a house. I own a house. मतलब ये घर मेरा है. I have मेरे पास है. They possess a car. एक कार है उसकी. Now over here see house and car, those are nouns. I've already said nouns का मतलब naming word. Over here house and car are naming words. Okay, so कुछ हमारा होना मतलब चाहे कार हो, vehicle, कुछ कोई भी vehicle हो, house हो, hat हो, तो something belongs to us or any of like animal, person, किसी को भी belong करना, कुछ उसका होना. A possessive noun is a word that shows that someone or something owns or has something. Possessive noun क्या बताता है? एक word है that shows, जो दिखाता है that someone, किसी का और किसी की चीज़ owns or has something. Okay, that owns or has something, उसका होना. Okay, for example, possession means something belongs to someone. ये चीज़ किसी की है. That belongs to him, her or any animal or any person. For example, यहाँ पे in the picture you can see a boy and a book. तो ये बुक ये लड़के की है. तो मैंने क्या बताया था? पजेसिव नाउन का मतलब कोई भी चीज़ किसी की होना. दैट बिलोंग्स टू समवन. तो ये बुक किसकी है? ये लड़के की. सो वी आर गोइंग टू राइट इट एज इट्स द बॉयज बुक. बॉयज दैट इज पजेसिव एंड बुक इज अ नाउन. यहाँ पे नाउन क्या है? बुक. अगेन दिस इज नताशाज स्कर्ट. ये जो स्कर्ट है in this picture is Natasha's. Okay, this skirt belongs to Natasha's. Natasha own this skirt or Natasha have this skirt. तो ये स्कर्ट किसको बिलोंग करता है? नताशा का. This is Tom's hat. ये hat किसकी है? टॉम की. तो मैंने क्या बताया था? पजेसिव नाउन का मतलब कोई भी चीज़ किसी की होना, उसके ऊपर उसका राइट होना, उसका हक होना. फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था? आई ओन अ हाउस और आई हैव अ हाउस. तो दैट हाउस बिलोंग्स टू whom? मी. सेम लाइकवाइज ओवर हियर दिस इज टॉम्स हेट. हेट किसकी है? टॉम की. ओवर हियर द नाउन इज हेट एंड before the noun that is possessive, that is Tom's.
This is Natasha's skirt. This is Tom's hat. This is Dan's photograph. This is Nikki's cat. Now, in all these sentences, what the one thing you can mark is, आप जो एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे वो कौन सी है? Apostrophe S. And this is the chapter all about. यहाँ पे सारे sentences में आप क्या देख रहे हो? Apostrophe S. This is Natasha's skirt. This is Tom's hat. This is Dan's photograph. This is Nikki's cat. Now, all this red marked word, a noun can show what it owns or possesses. ये सारे के सारे क्या है? Noun. Skirt, hat, photograph और cat. These are all nouns. और वो क्या बताता है? What it owns or possesses. मतलब कौन क्या ओन करता है, किसके पास क्या है. नाउन क्या बताता है? किसके पास क्या है. This is Natasha's skirt. This is Tom's hat. This is Dan's photograph. This is Nikki's cat. इसके पहले में पिक्चर में each the last word जो सारे के सारे nouns थे, बट यहाँ पे second last that is Natasha's, Tom's, Dan's, Nikki's. तो ये सारे क्या है यहाँ पे? A noun that shows ownership or relationship is a possessive noun. पहले तो ये सारे possessive noun है. Again, I am repeating. Look, यहाँ पे मैंने सारे लास्ट के आखिर के सबसे लास्ट में रेड मार्क्ड किए हैं सारे वर्ड्स. तो ये सारे क्या है? Noun can show what it owns or possesses. ओके ये सारी चीज़ें हैं, noun है. बट ओवर हियर these are possessive nouns. क्यों? क्योंकि ये सारे नाम उसके हैं जिसकी स्कर्ट है, जिसकी हैट है, जिसकी फोटोग्राफ है, जिसकी कैट है. तो ये सारे उसके हकदार है, द राइट. ओके. द कैट्स डिशेस, अ possessive noun always comes before the noun that belongs to it. Now, remember the rule. जो possessive noun होता है, तो इस सेंटेंस में द कैट्स डिशेस, उसमें possessive noun कौन सा है? द वर्ड विथ apostrophe s, दैट इज कैट्स. यहाँ पे जो कैट्स है वो possessive noun है. तो रूल क्या है? जो possessive noun है ऑलवेज कम्स बिफोर द नाउन. मतलब possessive noun हमेशा नाउन से पहले आएगा. possessive noun हमेशा नाउन से पहले आएगा. तो यहाँ पे नाउन क्या है? डिशेज. यस, डिशेज. एंड द possessive noun is cats. ओके, सो इन द ग्रीन वर्ड दैट इज डिशेज, वो क्या है? सिर्फ नाउन, दैट इज अ नेमिंग वर्ड. बट उसके आगे दैट इज उससे पहले क्या है? कैट्स, दैट इज possessive noun. सो रिमेंबर द बेसिक रूल. A possessive noun always comes before the noun that belongs to it. मतलब जो possessive noun है, जो apostrophe s वाला, वो हमेशा ही noun से पहले आएगा. Apostrophe. Now, there are two possessive nouns. कितने possessive nouns? हमने possessive nouns पढ़ लिए. Those are with apostrophe s. Okay? So, उसमें भी दो टाइप के हैं, दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल. हमने सिंगुलर और प्लूरल का टॉपिक पढ़ा है ऑलरेडी. सिंगुलर का मतलब वन, एंड इफ देयर इज मोर देन वन इट विल बिकम प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल अ पेन, दैट इज सिंगुलर, सिर्फ एक ही पेन है. बट अगर एक से ज़्यादा पेन हो गई तो चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, दैट बिकम्स प्लूरल. सो possessive nouns के भी दो टाइप है, singular and plural. First of all, we are going to study singular possessive noun. Singular possessive nouns and plural possessive nouns. A singular possessive noun plus apostrophe s. तो singular possessive noun, for example boy, teacher,
तो ये सारे सिंगुलर है, सिंगुलर दैट इज एक ही लड़का, एक ही टीचर। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? विथ अपोस्ट्रोफी एस, उसके पीछे हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, तो ये बन जाएगा सिंगुलर पॉजेसिव नाउन। पॉजेसिव नाउन तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया अपोस्ट्रोफी एस के साथ, बट सिर्फ एक लड़का हो, चाहे एक टीचर हो, तो ये सिंगुलर है ना, तो उसके पीछे जस्ट हमें अपोस्ट्रोफी एस लगा देना है, दैट इज सिंगुलर पॉजेसिव नाउन। We add an apostrophe s. We add an apostrophe s to make a singular noun possessive. Singular noun possessive बनाने के लिए हम सिर्फ apostrophe s को noun के पीछे add कर देते हैं। Over here the noun is cat. क्या है? cat. तो cat के पीछे देखो हमने सिर्फ apostrophe s लगा दिया, तो ये बन गया singular possessive noun. सेकेंड बॉय, अगेन यू कैन सी बॉय के पीछे अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, तो अगेन ये बन गया सिंगुलर पॉजेसिव नाउन। एंड द लास्ट वन दैट इज टॉम, उसके पीछे भी अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, दिस बिकम्स सिंगुलर नाउन पॉजेसिव। टॉम्स हैट, टॉम्स हैट, टॉम दैट इज एक ही आदमी है, एक ही पर्सन है, कौन? दैट इज टॉम, तो ये सिंगुलर हुआ ना, तो सिंगुलर पॉजेसिव नाउन बनाने के लिए हमने क्या किया? सिर्फ टॉम के पीछे अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। नेक्स्ट इज प्लूरल पॉजेसिव नाउन। हमने सिंगुलर पॉजेसिव नाउन पढ़ लिया, नेक्स्ट इज प्लूरल पॉजेसिव नाउन। तो एंड विथ एस प्लस एन अपोस्ट्रोफी। नाउ जो सिंगुलर थे उसके वर्ड में कोई भी एस नहीं आता था, बट यहाँ पे जो वर्ड है वो ऑलरेडी एस से ही एंड होगा, तो आप उसके पीछे अपोस्ट्रोफी एस कैसे लगाओगे? डबल एस नहीं लगेगा। लुक फॉर एग्जाम्पल लेडीज, नीचे आप देखो लेडीज, तो ये वर्ड जो है वो ऑलरेडी प्लूरल है ना, एक लेडी नहीं, बहुत सारी लेडीज, बहुत सारी वुमेन, लड़कियाँ, एक से ज़्यादा लड़कियाँ, दैट इज लेडीज, तो ये ऑलरेडी प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस के बाद में सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगेगा। ऊपर देखो एस के ऊपर छोटा सा कोमा है ऊपर, दैट इज कॉल्ड अपोस्ट्रोफी। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये वर्ड एस से ही एंड होता है। देखो इफ वी आर गोइंग टू कंपेयर, ये सिंगुलर पॉजेसिव नाउन है, तो सिंगुलर में क्या है? सिर्फ टॉम था, वर्ड क्या था? सिर्फ टॉम, तो हमने उसके आगे अपोस्ट्रोफी एस लगाया। बट इन प्लूरल पॉजेसिव नाउन लेडीज, तो ये ऑलरेडी वर्ड एस के साथ है, तो जो ऑलरेडी वर्ड एस के साथ ही है उसके आगे हम सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी ही लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कैट्स। एक कैट नहीं, एक बिल्ली नहीं, बहुत ढेर सारी बिल्ली, दैट इज प्लूरल, तो ये वर्ड प्लूरल में है, कौन सा? कैट्स, तो उसके पीछे ऑलरेडी एस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? प्लूरल पॉजेसिव नाउन बनाने के लिए सिर्फ अपोस्ट्रोफी ही लगाएंगे, ना कि एस, क्योंकि एस ऑलरेडी है। दिस इज प्लूरल, प्लूरल पॉजेसिव नाउन। ओके, द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल पॉजेसिव नाउन इज सिंगुलर में हम प्लस अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, प्लस अपोस्ट्रोफी एस, बट while in plural in which the word itself ends with s, जिसमें word end होता है किससे? s से ही, तो उसके पीछे हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी मार्क लगाएंगे। ओके, we add only an apostrophe। देखो आप रेड कलर का ऊपर कोमा देख सकते हो, उसको हम क्या कहेंगे? अपोस्ट्रोफी। We add only an apostrophe to make a plural noun ending in s possessive। फॉर एग्जाम्पल बॉयज़, तो ये वर्ड ऑलरेडी प्लूरल में है, एस के साथ ही है, कौन सा वर्ड? बॉयज़, एक से ज़्यादा लड़के, तो उसके पीछे हमने क्या किया? ओनली वी हैव एडेड अपोस्ट्रोफी। लुक इन दिस पिक्चर। सेकेंड डॉग्स, ऑलरेडी इट्स अ प्लूरल वर्ड, डॉग्स, इट एंड्स विथ एस, ये एस के साथ ही एंड होता है, इसीलिए हम प्लूरल पॉजेसिव नाउन बनाने के लिए सिर्फ ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। एंड द लास्ट
गर्ल्स, एक से ज़्यादा लड़कियाँ. ओके, दिस वर्ड ऑल्सो एंड्स विथ एस. ये ऑलरेडी प्लूरल है, एक से ज़्यादा लड़कियाँ. तो इसको प्लूरल पॉजेसिव नाउन बनाने के लिए हमने क्या किया, सिर्फ ऐड किया अपोस्ट्रॉफी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल. ये प्लूरल पॉजेसिव नाउन. द विचेस ब्रूम. विचेस मतलब एन इविल क्वीन, जो बुरी होती है ना, चुड़ैल डायन वो सब, काइंड ऑफ. ना द विचेस ब्रूम. ब्रूम मतलब जो झाड़ू रहता है ना, जिससे हम कचरा निकालते हैं, दैट इज ब्रूम. इन इंग्लिश वी कॉल इट एज अ ब्रूम. तो द विचेस ब्रूम. तो विचेस, द वर्ड विचेस इटसेल्फ हैज एस. तो ये विचेस वर्ड एंड होता है किससे, एस से. तो ये ऑलरेडी प्लूरल है. तो हमने इसमें क्या किया, प्लूरल पॉजेसिव नाउन बनाने के लिए सिर्फ अपोस्ट्रॉफी, जो अपोस्ट्रॉफी है उसको ही लगाया, क्योंकि ये ऑलरेडी एंड होता है एस से. ना हमने क्या पढ़ लिया, पॉजेसिव नाउन. उसमें भी दो टाइप्स होते हैं. कौन से, सिंगुलर पॉजेसिव नाउन और प्लूरल पॉजेसिव नाउन. नाउ लेट्स मूव फर्दर. पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस. ओके, हमने पहले कौन से दो टॉपिक पढ़े, सिंगुलर पॉजेसिव नाउन और प्लूरल पॉजेसिव नाउन. एंड नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन. Possessive adjective, that is my, our, your, her, their are possessive adjective. Take a naming word after them. मतलब ये जो सारे possessive adjective है, कौन से my, our, your, her, their, ये सारे क्या कहे जाते हैं, possessive adjective. उसके पीछे नेमिंग वर्ड लगेगा, उसके पीछे नेमिंग वर्ड आएगा. नेमिंग वर्ड दैट इज नाउन. फॉर एग्जाम्पल, माई कैट, आवर हाउस, योर बैग. तो इसके पीछे ये सारे क्या है, नेमिंग वर्ड. तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के पीछे नेमिंग वर्ड आएगा. ऑलवेज रिमेंबर, पॉजेसिव एडजेक्टिव के पीछे नेमिंग वर्ड आएगा. पॉजेसिव प्रोनाउन. पॉजेसिव प्रोनाउन कौन से है, माइन, अवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स. ये सारे के सारे क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउंस. ना डोंट टेक एनी नेमिंग वर्ड आफ्टर देम. तो इसके पीछे कोई भी नेमिंग वर्ड दैट इज नाउन नहीं आएगा. मैंने पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या कहा था, पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन से है, माई, अवर, योर, हर, देयर. तो उसके पीछे नेमिंग वर्ड दैट इज नाउन आएगा. बट इन पॉजेसिव प्रोनाउन कौन से है, माइन, अवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स. उसके पीछे नेमिंग वर्ड दैट इज नाउन नहीं आएगा. ऑलवेज पॉजेसिव प्रोनाउन सबसे लास्ट में आता है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, दिस बैग इज माइन. दिस बैग इज माइन. तो माइन सबसे आखिर में है, उसके पीछे कोई भी नेमिंग वर्ड दैट इज नाउन नहीं आएगा. अनदर एग्जाम्पल, दिस हाउस इज अवर्स. दिस हाउस इज आवर्स. मतलब ये घर मेरा है, आवर्स. तो ये सबसे लास्ट में आता है, उसके पीछे कोई भी नेमिंग वर्ड नहीं आएगा. लेट्स स्टडी दिस इन डिटेल. We can use his with or without a naming word. जो his है वो possessive adjective and possessive pronoun दोनों में ही सेम रहेगा. his का his नहीं होगा. जैसे my का mine हो गया, our का ours हो गया, their का theirs हो गया, her का hers हो गया. बट his का his ही रहेगा, चाहे उसके बाद नेमिंग वर्ड आएगा भी और हिज के बाद नेमिंग वर्ड नहीं भी आएगा. आई नो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसीलिए हम अंडरस्टैंड करेंगे विथ अ शॉर्ट वीडियो. ओके, नाउ लेट्स बिगिन. Possessive adjectives and possessive pronouns. When do we use possessive adjectives and pronouns?
to refer to possessions and to indicate ownership of something. For example, possessive adjectives कौन से हैं मैंने बताया था. सबसे फर्स्ट that is my. For example, my car is red. यहाँ पे देखो my के पीछे क्या है, car, and the car is a naming word. Second, your shoes are blue. your के पीछे भी naming word है, कौन सा, shoes. Third, his, her, its. his hair is grey. his के पीछे naming word है, कौन सा, hair. our jobs are fun. Over here jobs is a naming word. तो रूल क्या था, ऑलवेज पजेसिव एडजेक्टिव के पीछे क्या आएगा, नाउन और अ नेमिंग वर्ड. देयर हाउस इज बिग. नाउ पजेसिव प्रोनाउंस. तो पजेसिव प्रोनाउंस कौन से थे, फर्स्ट माइन. तो मैंने क्या कहा था, पजेसिव प्रोनाउंस सबसे आखिर में होता है. द कार इज माइन, उसके पीछे कोई भी नेमिंग वर्ड नहीं आएगा. सेकेंड, योर्स. द एप्पल इज योर्स, यहाँ पे भी देखो सबसे लास्ट में. थर्ड, हिज, हर्स, इट्स. यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, हिज एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों में सेम रहेगा. यहाँ पे द पेन इज हर्स. अवर्स. द हाउस इज अवर्स, अगेन लास्ट में आया पजेसिव प्रोनाउन, उसके पीछे कोई भी नेमिंग वर्ड नहीं है. देयर्स. द बुक आर देयर्स. Possessive adjectives and possessive pronouns review. Now let's compare possessive adjectives or possessive pronouns. Okay, possessive adjective and pronoun. Possessive adjective is my, pronoun mine. Adjective your, pronoun yours. Adjective his, her, its, pronoun his, hers, its. His and its will remain same in both. Adjective our, pronoun ours. Adjective their, pronoun theirs. Let's understand with examples. First, this is my, that is possessive adjective. car, मैंने क्या बताया था, possessive adjective के पीछे हमेशा क्या आएगा, noun, that is car. ये है possessive pronoun. this car is mine, सबसे लास्ट में आया mine. next, this is their house. देखो adjective के पीछे naming word आया, but यहाँ पे प्रोनाउन है इसीलिए सबसे लास्ट में आएगा. दिस हाउस इज देयर्स. नेक्स्ट, दिस इज आवर किचन. देखो किचन क्या है, नेमिंग वर्ड, उसके पहले आवर आया, दैट इज एडजेक्टिव. यहाँ पे प्रोनाउन है इसीलिए सबसे लास्ट में आएगा. दिस किचन इज आवर्स. दिस इज हिज स्पेशल मोमेंट. यहां देखो हिज के पीछे नेमिंग वर्ड आया, बट हिज दोनों में सेम रहेगा इसीलिए दिस स्पेशल मोमेंट इज हिज. दिस इज पॉजेसिव प्रोनाउन, सो हिज दोनों में सेम रहेगा. उसके पीछे नेमिंग वर्ड आएगा भी और नहीं भी आएगा. नाउ लेट्स स्टडी द एक्सरसाइज ऑफ द सेम चैप्टर. Test yourself. Write this without off. The first question is you have to write this without off. First one, the book of Ria. मैंने क्या बताया था, possessive nouns आपको कैसे बनाना है, with apostrophe s. तो बुक किसकी है, रिया की. किसकी है, रिया की. तो ये बन जाएगा रियाज बुक. Second, the shorts of men will become men's shorts. ये क्या बन जाएगा, men's shorts. The next,
The toys of children. The toys of children. That will becomes children's toys. Children's toys. Fourth, the house of Mr. Smith. The house of Mr. Smith. Mr. Smith's house. The office of my brother. That becomes my brother's office. So आपको क्या करना था, यहाँ पे possessive nouns बनाने थे. किस में से? सेंटेंस में से. Likewise, you have to do the same question by your own. Next, now complete this sentences. आपको क्या करना है, ये sentences को complete करना है. But before that, you need to understand the relationship. आपको यहाँ पे in your learn well on your page number 58, question number 2, पूरा एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इन द बॉक्स, बट यहाँ पे मैंने सीधे आंसर्स लिखे हैं. तो वो डिस्क्रिप्शन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सुमित एंड देविका आर हस्बैंड एंड वाइफ. सुमित एंड देविका कौन है? हस्बैंड वाइफ है. दे हैव अ सन रॉबिन. उसका एक बेटा है. कौन? रॉबिन. दे हैव अ डॉटर कुहू. उसकी एक लड़की भी है, कुहू. कुहू इज मैरिड टू अरमान. कुहू की शादी अरमान के साथ हुई है. कुहू एंड अरमान हैव अ सन ईशान. कुहू और अरमान का भी एक बेटा है, दैट इज ईशान. तो इसके बेसिस पे आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल अप करनी है, बट बाय यूजिंग possessives, दैट इज apostrophe s. Now first one is कुहू is dash wife. कुहू किसकी वाइफ थी? अरमान्स की. कुहू इज अरमान्स वाइफ. सेकेंड, देविका इज डैश वाइफ. अभी देविका किसकी वाइफ थी? देविका इज सुमित्स वाइफ. यहाँ पे देखो मैंने पॉजेसिव यूज किया है, अपॉस्ट्रोफी एस. रॉबिन इज डैश अंकल. तो रॉबिन इज ईशान्स अंकल. फोर्थ, कुहू इज रॉबिन्स सिस्टर. कुहू रॉबिन की बहन है. अरमान इज ईशान्स फादर. अरमान क्या है? ईशान के पिता है. नेक्स्ट, सिक्स्थ, रॉबिन इज कुहूज ब्रदर. रॉबिन और कुहू दोनों भाई हैं. सेवेंथ, कुहू इज ईशान्स मदर. कुहू कौन है? ईशान की मम्मा. एथ, सुमित इज देविका's हस्बैंड. सुमित इज देविका's हस्बैंड. नाइन्थ, अरमान इज कुहू's हस्बैंड. अरमान किसका हस्बैंड है? कुहू का. देविका इज ईशान्स ग्रैंड मदर. देविका ईशान की कौन लगती है? ग्रैंड मदर. नेक्स्ट, टेस्ट योरसेल्फ. कंप्लीट ईच सेंटेंस विथ वन ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज माई, माइन, our, ours, your, yours, her, hers, their, theirs. आपको क्या करना है? ये सेंटेंसेस को ये सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउंस से फिल अप करना है. फर्स्ट, दिस इज योर कार. तो दिस कार इज, योर का क्या बन जाएगा? योर्स. तो दिस कार इज योर्स. तो जो सेकेंड लाइन में सबसे योर्स जो है वो लास्ट में आता है, तो ये क्या हो गया? पॉजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि उसके पीछे कोई भी नेमिंग वर्ड नहीं आएगा. सो दिस इज पॉजेसिव प्रोनाउंस. एंड योर का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? योर्स. ये सबसे लास्ट में आएगा. सेकेंड, दैट इज डैश बैग. दैट इज डैश बैग. तो सबसे पहले आपको क्या करना है? डैश बैग. तो सबसे पहले आप लोगों को ये तो पता चल गया यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा. क्यों? क्योंकि डैश बैग, तो जो बैग है वो नेमिंग वर्ड है. और मैंने क्या बताया था? पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा ही एक नाउन दैट इज नेमिंग वर्ड होगा. और यहाँ पे नेमिंग वर्ड क्या है? बैग. नाउ दैट बैग इज माइन. तो माइन इज पॉजेसिव प्रोनाउन. तो माइन का क्या हो जाएगा? माई. एडजेक्टिव माई. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द टेबल ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन.
दोनों पजेसिव एडजेक्टिव भी आपको लर्न करने हैं और पजेसिव प्रोनाउंस भी आपको लर्न करने हैं। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा दैट माई का माइन हो जाएगा, आवर का अवर्स हो जाएगा, देयर का देयर्स, योर का योर्स। ओके, सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द टेबल। और इन दैट टेबल पजेसिव एडजेक्टिव जिसके पीछे नेमिंग वर्ड आएगा, पजेसिव प्रोनाउन जिसके पीछे नेमिंग वर्ड नहीं आएगा। थर्ड, दिस इज आवर फ्लैग, दिस फ्लैग इज डैश। तो सबसे पहले तो फर्स्ट सेंटेंस में आवर जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, तो उसका पजेसिव प्रोनाउन क्या बन जाएगा? अवर्स, अवर्स। और मुझे कैसे पता चला ये पजेसिव प्रोनाउन है? क्योंकि ये सबसे लास्ट में है, आखिर में, और उसके पीछे कोई भी नेमिंग वर्ड नहीं है। सो दिस फ्लैग इज अवर्स। नेक्स्ट, दैट इज डैश हाउस, दैट हाउस इज देयर्स। तो आपको नीचे सेकेंड सेंटेंस में देयर्स, दैट इज ऑलरेडी पजेसिव प्रोनाउन दिया गया है। तो देयर्स का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? देयर। एंड ऊपर इन द ब्लैंक यू हैव टू राइट देयर। उसके पीछे क्या आएगा? नेमिंग वर्ड, दैट इज हाउस। दैट इज वाई दिस इज पजेसिव एडजेक्टिव। फिफ्थ, दिस इज योर मनी, this money is yours. Sixth, those are her shoes, those shoes are hers. Seventh, these are my trousers, these trousers are mine. Eighth, those are our books, those books are ours. Ninth, you will have your share, I will have yours. So I hope you all must have understood this chapter, and you also have to complete the exercise for the same, and you all have to do this exercise in the LearnWell itself, क्योंकि आपके LearnWell में already there is space given below. Okay, in your grammar and composition you all have to do this exercise in the textbook itself. So complete the exercise and have a nice day.